हम लोगों ने ही ये मीन्स इसको रचा है। अभी कुछ देर पहले आपने बोला ना, उसका मतलब अपनी दुनिया अपन ने रखी है। हाँ, अपनी दुनिया हमने रची है। बट ये यूनिवर्स और ये मतलब हमने ये पूरी जो दिख रहा है हमको, हमने रची है क्या ये सब? जो अभी उसके लिए भी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी अगर वो बोलने जाओ ना वो आधा अधूरा हो जाएगा। तो विल गो विद द फ्लो अकॉर्डिंगली, एक एक पॉइंट उठा के। थैंक यू दी। यस वीना मैम। ओम शांति दीदी। ओम शांति। नहीं, हम लोग पहले से एक वर्ड सुनते थे, नॉलेज इज यूनिवर्सल। तो नॉलेज इज यूनिवर्सल करके, इसको तो पता नहीं था ये कैसे यूनिवर्सल में क्योंकि बाबा ने मेरे को एक टीचर दिया था, मेरे को मीन्स योगा टीचर है। शी वाज वेरी गुड इन स्पिरिचुअल लाइन आल्सो। लास्ट 2 months back only she left her body. Maybe the base was that बाबा ने उसको चूज किया मेरे को ये लाइन के आने के लिए, क्योंकि वो कैसे थी ज्ञान में नहीं थी, मगर वो तो अभी हम लोग क्या पढ़ रही है वो अलग पढ़ रही थी। तो मगर अभी बाबा ने क्या दे रहे हैं वो वैसे ही कर रही थी, नहीं बोल रही थी, कर रही थी। तो प्रैक्टिकल स्वरूप में थी वो बहुत अट्रैक्ट था। इतना अट्रैक्ट, कुछ भी नहीं बोलती थी, मगर हम लोग योगा सीखने के लिए जाते थे, फ्री में सिखाती थी। आई कांट से हाउ मच शी वाज प्लेजेंट इन हर फेस, इन हर हाउस। मेरे को ये हाउस बहुत अट्रैक्ट था। अट्रैक्ट मीन्स नॉट द फिजिकल चीजों का, मगर वो घर को एंटर करने डिफरेंट फीलिंग होता था। बाद में इसको भी चिंतन करता था। पता चलता है हमारा थॉट कैसे वैसा मीन्स वो क्या बोलते हैं वो परिमल सुगंध ये फिलाते घर में फैलती है ना, तो मे बी फ्रेग्रेंस फैलती है ना। मे बी शी वॉज ऑल द टाइम she was very pleasant, and I have seen her in a bad situation, in a good situation. Both the situation I have seen her, she was so stable, achal adol. Baba bolte hai na, matlab she was not in BK, but she is in some spiritual line, and she was not telling you don't go there, you don't go there. That she was not telling. But Veena, you do like this, you do that, like that she used to tell. But she never ever says you go here, you go there, you don't do this, don't do that. And one more thing, she always positive. I can't say how much she was for everyone. She never ever discouraged anyone. Each and everyone. Not only saying, even if see her face, it was so attractive in a different way. This was like her thoughts was always pure, I feel, for everyone. That is spreading in the universe, in the nature. So it is attracting everyone. As you said, the nature will help us to connect with Baba, or Baba will connect us to the nature through the Murli. It's like a circle. Baba, nature, and this knowledge is one circle hai. It's like from left to go, you have to come to the right. Again, if you go right, you have to come from the left, same place. So this was, now I can understand what Baba is going to tell us. Before, really, I was not knowing what is this nature is gives, how it is and all. Now everything is coming clarity. What nature attracts the vibrations, not the words. So in our what we create the thoughts, no, it will goes to the nature and reflect as science says, what you Newton law, what it says, no, the same thing. Science says the same thing. Spiritual also says the same thing. But we used to say, but we were not feeling that. Now we are feeling that also. We are, realizing that. For this, as you said, the thoughts, our Jayamami told, Vyartha or Samartha. But Sankalp is Sankalp. Whether it is the negative or positive, everything goes to the nature and it gives back same thing, the answer. So, Srushti also, I am very curious
curiosity about this Srishti and all. It will be very nice session actually. Baba's main session and important session, I can say. Sankalp says Srishti, very, very important. This is, you can change our zindagi. We can change our life only because thought. Thank you so much, Didi. Base of the knowledge. The base of the knowledge is Sankalp. Thank you very so much. वेरी नाइस, थैंक यू वीना बहन कि आपने बताया कि इसका फाउंडेशन जो बेस है ना वो है संकल्प। और बाबा जब आया ना तो सबसे पहले हमारा फोकस इसी पे कराया कि तुम अपने थॉट्स, अपने संकल्प, अपने दिमाग को चेंज करो, अपनी सोच को चेंज करो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हारी आज ये दुनिया इस तरह से बनी क्यों है, क्यों इतना तनाव भरा हुआ है, क्यों इतना दुख दर्द भरा हुआ है तुम्हारी दुनिया में, क्यों इतनी तकलीफें है, क्योंकि यही तुमने बनाई है, तुम्हारे संकल्पों से तुमने अपनी ये दुनिया रची है। अब इसी तकलीफों से बाहर निकलना है, इस दुख दर्द से, इन तकलीफों से, इससे बाहर अगर निकलना है तो तुम्हें श्रेष्ठ संकल्प करने होंगे। तो श्रेष्ठ संकल्प मतलब क्या, अभी कैसे हमको हमारी दुनिया रचनी है फिर से। अच्छी दुनिया को हमने बिगाड़ा अपनी ही सोच से, अब अपनी ही दुनिया को वापस से श्रेष्ठ सुंदर बनाना है तो किस तरह से बनाना है। तो यही बात पापा हमें मुरली के द्वारा बार बार बताते रहता है। अब हमको किस तरह से उस मुरली को देखना है, सुनना है, पढ़ना है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं अपनी दुनिया बनाना। बाबा बोलते हैं ना, क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारा फ्यूचर किस तरह चाहिए, उठाओ कलम और लिखो अपनी तकदीर। तो अभी वो वक्त है लिखने की तकदीर कि किस तरह बनना है। तो यही है हमारी सृष्टि, हम खुद बनाते हैं अपनी सृष्टि, और अपनी सृष्टि हम अपने संकल्पों से पहले स्टार्ट करते हैं। अब ये संकल्प आते कहाँ से है, किस तरह के संकल्प हम बनाते हैं, कौन लाता है हमारे दिमाग में ये संकल्प, इसके ऊपर भी ये पहले हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले तुम्हें समझना है विश्वामित्र की कहानी है। तो अभी 10 मिनट है तो विश्वामित्र की कहानी बताती हूँ मैं, और फिर कल अपनी कहानी बताएंगे उसी से रिलेट करके मुरली के आधार पर। ठीक है, तो अब सभी को पता ही है विश्वामित्र की कहानी। महा ऋषि थे, 8 ऋषियों में से एक ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र नाम ही बताता है, क्या नाम बताता है, विश्व का मित्र, यूनिवर्सल फ्रेंड। इसके लिए उसको कहा गया है विश्व का मित्र, विश्वामित्र। ठीक है, तो वो उसमें इतनी शक्ति थी, वो अपने संकल्प जैसे जैसे करता था ना, उसने वैसी वैसी अपनी सृष्टि रचनी शुरू कर दी थी। और उसको ये पता था कि वो उसमें इतनी ताकत है कि वो अपनी सुंदर दुनिया, स्वर्ग की दुनिया बना सकता है। और वैसे ही पहले से दुख की दुनिया, उस दुख की दुनिया में बैठ के उसने अलग ही दुनिया बनाई, और वो थी स्वर्ग की दुनिया, स्वर्ग की स्थापना। तो वो जब देखा तो इंद्र भगवान जो थे ना, सब देवी देवताओं को राजा इंद्र, उसने देखा, उसको लगा कि अगर विश्वामित्र ने अपनी ही दुनिया इतनी सुंदर बना दी, तो मेरा क्या, तो मेरा राज का जो इंद्र का मतलब मैं जो राजा हूँ वो तो मेरे हाथ से चला जाएगा। तो वो डर गया, इसके लिए उसने अपने अपने इसमें से एक अप्सरा को बुलाया। सब उसकी सभा में जो डांसर थी अप्सरा, जिसका नाम था मेनका, उसको बुलाया, उसको कहा तू जाके विश्वामित्र के जो योग इसमें था ना उसको भंग करना है। जैसे उसका तू ध्यान खींच लेगी, उसको डाइवर्ट करेगी, तो वो दुनिया बनाना भूल जाएगा। तो मेनका को वो धरती पर भेजता है। मेनका धरती पर आकर विश्वामित्र के सामने बहुत ही ब्यूटीफुल डांस करती है, गाती है, डांस करती है। पहले तो विश्वामित्र का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता क्योंकि वो बहुत ही मगन रहता है अपनी
दुनिया बनाने में संकल्प से। जब मेनका आती है, डांस करती है, उसको रचाती है, ये करती है, और कहीं न कहीं वो उसके प्रभाव में आ जाता है और वो अपनी उस सत्युगी स्वर्ग वाली दुनिया बनाना भूल जाता है और उसके प्यार में पड़ जाता है, और फिर उसकी जो तपस्या, उसका जो योग बल है वो खत्म हो जाता है। और वहाँ पे इंद्र जीत जाता है। ये आप लोगों ने हमारे माइथोलॉजी में ये स्टोरी सुनी होगी। अभी इसी को लिंक करो अपने आप से। क्या सोच के? इंद्र मतलब कौन? हमारी इंद्रिया, हमारी कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, वो इंद्र है। मेनका कौन? जिसको बाबा माया बोलता है। बाहरी दुनिया, मायावी दुनिया। और हम कौन? एक आत्मा, विश्व मित्र, विश्व की मित्र। विश्व मित्र मतलब जो दुनिया को अच्छे रूप में देखना चाहता है, स्वर्ग के रूप में देखना चाहता है, सतयुग की तरह देखना चाहता है, वो है मैं आत्मा। अब लिंक करो अपनी खुद की दुनिया को उसके साथ में। इंद्र हमारी कर्मेंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, माया मतलब मेनका, मैं आत्मा एज ए विश्व के मित्र। और कहा हमने हमारी दुनिया को बिगाड़ा है, ये चेक करो। अभी ये तुम्हारा आज का होमवर्क रहेगा। कल हम इसी की बात पर डिस्कस करने वाले हैं। आज अगर आप बचपन से लेके अभी तक का याद करना कि बचपन में तुमने क्या संकल्प किए थे और कहाँ पे आज पहुँचे हो। जैसे मैंने आपको मेरे बचपन की कहानी बोली थी कि बचपन में जैसे मेरी मम्मी व्रत रखती थी संतोषी माता का और इसका, तो मेरे बहुत संकल्प चलते थे कैसे कैसे कि वही संतोषी माता का व्रत रखो, अगर खट्टा खाया तो वो हमें श्राप दे देगी, हमें कर्ज करेगी, हमारे जीवन में दुख दर्द आ जाएगा। तो मेरा तो रिवॉल्ट वाला ही नेचर था। मैं डायरेक्टली कोई भी चीज ना ऐसे लॉजिक ना हो ना, उसमें कोई तथ्य ना हो तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। तो मेरे को उस वक्त बहुत संकल्प चलते थे कि ऐसे कैसे ये क्रोधी वाली माता है कि हम उसकी पूजा करनी क्यों, इससे बेटर तो मेरी मम्मी है। वो भले ही इंसान है, मैं उसको, मेरे को गुस्सा नहीं आता, मैंने मिस्टेक कर भी दी ना तो वो मुझे प्यार से समझाएगी, वो मुझे मारेगी नहीं, मुझे श्राप नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो मेरी माँ है, तो मुझे कभी श्राप नहीं देगी। तो फिर मैं इसी की पूजा क्यों नहीं करूँ? उसकी, उस माता की क्यों, संतोषी माता की मैं पूजा करूं जिससे मेरे को डर डर के जीना है? तो वो कैसी माता हुई? तो ये मेरे रिबेलियन क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलते थे कि हमको इसकी पूजा ही क्यों करनी है, ऐसी ही पूजा क्यों करनी है, दिए ही क्यों लगाने हैं मंदिर में जाके, और दिए लगा के हमको देवी देवताओं को भी ऐसे करना है, अपने को भी लेना है। तो मतलब दिए में इतनी शक्ति है कि देवी देवताओं को भी वो जरूरी है उसका धूप देना, और फिर हम धूप ले रहे हैं। मतलब हमको भी और देवी देवताओं को भी उतनी जरूरत है उन चीजों की। व्हेन आई वाज चाइल्ड, दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक ऑल दिस थिंग्स। और कैसे मेरी वो दुनिया बनी है, कहाँ ये सच्चाई, सत्य ज्ञान की प्यास जो है ना, मेरी बचपन से ही थी। मुझे बहुत लॉजिकल आंसर चाहिए रहते थे, मैं आसानी से कोई भी चीज फॉलो नहीं कर सकती थी। मगर पता नहीं मेरे को, आज भी मेरे लिए वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ज्ञान में आकर मैं क्यों ये भेड़ चाल चलनी शुरू करी है। वो 10 साल तक मैंने वो क्यों किया, मेरे लिए वो क्वेश्चन मार्क है। मगर इसका भी आंसर मुझे मिला है, मैं कभी शेयर करूंगी बाद में। मगर वो सेटिस्फैक्टरी आंसर मुझे चाहिए है, कभी मिले तो है, बट आई एम नॉट स्टिल सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड। तो ये थे वो क्वेश्चन बचपन से। फिर मैं भगवान को बोलती थी, जैसे मेरी मम्मी हम लोग को चांद की स्टोरी सुनाती थी ना, चंदा मामा, तो मम्मी कभी हमको डांट देती थी, गुस्सा हो जाती थी, कोई हम बहुत मस्ती करते थे, कभी एक थप्पड़ भी लगा देती तो हम रोते थे, और फिर हम चंदा मामा को देख के बोलते थे, देख तेरी बहन कैसे हमको डांटती है, मारती है, तू आता नहीं है हमें बचाने के लिए है। तो इस तरह से चंदा मामा के साथ भी बात करती थी। तो उस वक्त मेरे को वो वापस से क्वेश्चन आता था, ये चंदा मामा ऊपर रहकर क्या करता होगा, हमें किस तरह से हेल्प करेगा, ये भगवान बोलते तो भगवान है किधर, कहाँ से वो भगवान आता है, वो दिखता क्यों नहीं है हमें।
ये भूत प्रेत तो दिखाई देते हैं, सब लोग बोलते हैं भूत ऐसा है, भूत वैसे, भूत इसके शरीर में घुस गया है, भूत कैसे टेढ़े मेढ़े होते हैं, उल्टे पैर होते हैं, ये भूत दिखाई देते हैं, फिर भगवान क्यों नहीं दिखता? ये सारे ऐसे क्वेश्चन बचपन में, भूतों की कहानी में डरती बहुत थी, हर चीज से मेरे को डर लगता था, और ये डर की वजह से ये संकल्प मेरे सारे चलते थे। और इसी संकल्पों से मेरी दुनिया रची गई है, जो आज मुझे सबके आंसर्स मिले हैं, उसी की खोज लेकर मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। तो दिस इज मेरा बचपन का रचा हुआ, और आज वहाँ पे मेरी दुनिया बनी है, उस दुनिया के सारे आंसर्स मिले हैं मुझे। ठीक है, आगे फिर मैं शेयर करूंगी। तो ये थी विश्वामित्र की कहानी, ये थी मेरी कहानी बचपन वाली, और कहाँ से कैसे चेंज हुआ है, बाबा के ज्ञान में क्या छिपा हुआ है, उन मुरलियों में क्या छिपा है, कौन सा रहस्य बाबा बोलता है। जितना तुम चलते जाओगे वही मुरली तुम्हें रहस्य भरी कहानी सुनाते जाएगी, और एक एक रहस्य खुलते जाएगा, एक एक मिस्ट्री बॉक्स खुलते जाएगा। तो कौन से मिस्ट्री बॉक्स की बात करता है, कैसे है वो मिस्ट्री बॉक्स? क्या ये हमारे ही वो संकल्प तो नहीं है जो हमने संकल्प किए, और आज उसी का आंसर वो मिस्ट्री बॉक्स के रूप में खुल रहा है? सोच के देखना, ये आज तुम्हारा मंथन के लिए होमवर्क है, कल हम फिर से मिलेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी देखना तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी, यही सोचते बाबा के साथ बैठ जाओगे। यही मैं 14 साल से कर रही हूँ, और आज भी मेरे को उतना ही इंटरेस्टिंग लगता है। अभी तो मेरे साथ में कुदरत भी जुड़ गई है, अब बाबा, कुदरत और मैं, हम तीनों की चिट चैट चलती ही रहती दिन रात। ठीक है, ओम शांति। दीदी वो त्रिशंकु वाला स्टोरी भी है ना, वो भी विश्वामित्र ने रचा था ना? अच्छा, वो नहीं मालूम मुझे ये बस वो भी इतना डिटेल नहीं मालूम था, छोटा सा मालूम है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी ही माइथोलॉजी जो है ना, माइथोलॉजी में जितनी भी स्टोरीज है, हाँ, माइथोलॉजी में जितनी भी स्टोरीज है ना, ये सारी हमारी अभी की स्टोरीज कहीं ना कहीं लिंक होती है। महाभारत बोलो, रामायण बोलो, या कोई भी स्टोरी, एक भी कोई भी स्टोरी उठाओगे तो तुम्हें उसका आंसर मिलेगा रिलेटेड विथ टुडेज वर्ल्ड। ठीक है, त्रिशंकु की कहानी अगर है तो आप शॉर्ट में 1 मिनट में बता पाएंगे? हाँ दीदी, वो वशिष्ठ एक मुनि है ना, वो बहुत ही पावरफुल था, और वशिष्ठ का ये डिसाइपल था, पता नहीं क्या, विश्वामित्र। तो वो वशिष्ठ ने वो कामधेनु ऐसा कुछ, मेरे को ठीक याद नहीं है, वो कौ को चुरा लिया था, हो गया था, और ये नहीं था, वो एक राजा था ना, वो बहुत अच्छा राजा था, वो विथ बॉडी ही वांटेड टू गो टू स्वर्ग विथ बॉडी, but that is not allowed. But when he requested this Vasishta, he said, no, I will not distinguish the rules of nature, I will not interfere, I will not do. Then ये विश्वामित्र के पास गया, तो वो उसको ये सवाल हो गया, उसको मतलब एक प्रूव करने के लिए हो गया कि मैं वशिष्ठ से भी ग्रेट हूँ करके। उसने क्या बोला कि मैं दिखाता हूँ, मैं तुमको भेजूंगा ऊपर। तो उसने वो उसको प्रिपेयर किया, और उसको मतलब मंत्र वगैरह शुरू कर दिया उसने, वो करके त्रिशंकु वो जो है ना, वो राजा ऊपर चला जाता गया ऊपर, और ऊपर उसने एक स्वर्ग क्रिएट कर दिया उधर बीच में, उधर ऊपर एक स्वर्ग था, नीचे पृथ्वी लोग बीच में, और उधर ये ऊपर जाता गया, तब उधर इंद्र वगैरह वो लोग बहुत डर गए, ये मतलब एक और ये रच रहा है हमारा, ये स्वर्ग ये हो जाएगा करके। उसने वशिष्ठ को बोला कि वशिष्ठ उसको बोला कि ये देखो ऐसा कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए। तो वशिष्ठ जो है उसको, जो राजा ऊपर जा रहा था ना, उसको नीचे कर दिया, उसको अभी उसका मंत्र वगैरह करके वो नीचे आने लगा। नीचे आके वो अभी जो राजा था ना, त्रिशंकु, वो नीचे स्वर्ग में गया और पृथ्वी में रहा, बीच में ही अटक गया, ऐसा ही वहीं रहने लगा वो, और शायद और नीचे आ गया ना, तो ये जो विश्वामित्र है उसके लिए उधर ही एक स्वर्ग बना दिया उसने,
ओके। ऐसा ये स्टोरी है दीदी। ठीक से शायद मेरा कम्प्लीटली ठीक नहीं होगा मगर ऐसा है वो। हाँ, मेरे को भी थोड़ा सा ऐसा कुछ याद आता है। मेरे डैडी को बहुत था ये सब माइथोलॉजी की स्टोरीज। उन्होंने मेरे को सुनाई थी इसके बारे में। ये थी वो रचना जिसके लिए फिर इंद्र ने उनको स्टॉप किया था। यस, आई रिमेम्बर सम लिटिल बिट। सो वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच शशिकला बहन, आपका भी इनपुट के लिए। एड ऑन नॉलेज एवरी टाइम इट हेल्प। तो हम कल मिलते हैं, ठीक है। ओम शांति। मंथन सभी लोग जरूर करना। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।